નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, પાઠક સ્કૂલ ઓનલાઈન ક્લાસીસમાં આપ બધાનું સ્વાગત છે. આજે આપણે ધોરણ 4ની અંદર હિન્દી વિષય ભણવાનો છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે છેલ્લા પીરિયડની અંદર આપણે પાઠ 26 અને ટપકા કા ઘર એ આપણે કરેલો હતો અને એની સમજૂતી મેળવી અને એના અભ્યાસના પ્રશ્નો મેં તમને કરાવેલા હતા. હવે આપણે એ આખું સ્વાધ્યાય જે છે એ આપણે પૂરું કરવાનું છે. તો તમે ઘરે વાંચેલું હશે, કરેલું હશે અને તમે ભાષાંતરનું જે મેં તમને હોમવર્ક કર્યું હતું, કીધું હતું એ પણ તમે સરસ રીતે કરેલું હશે. તો જેથી કરીને પ્રશ્નો કરવામાં તમને કોઈ પણ વધારે તકલીફ પડશે નહીં. તો હવે જે પાકી બુકની અંદર આપણે અભ્યાસના પ્રશ્નો કરેલા હતા તે હવે આપણે તમે કાઢો, રબર પેન્સિલ લ્યો અને સારા અક્ષરે મારી સાથે આગળના પ્રશ્ન જે છે એ તમારે કરવાનું છે. તમારી સાથે તમે તમારી આ પુસ્તિકા જે છે ધોરણ 4ની હિન્દી પ્રવેશિકા, હિન્દીની જે પુસ્તક તમારી પાસે છે એના પેજ નંબર તમારે 30 કાઢવાનું છે. 30મા પેજની ઉપર આપણે જે આ પ્રશ્નો છે એ પૈકીના અભ્યાસના પ્રશ્ન 10 મેં તમને કરાવેલા હતા. હવે પછીના પ્રશ્નથી આપણે શરૂઆત કરીશું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એના પછીનો પ્રશ્ન શું છે? તો જંગલ में और क्या क्या भीग रहा होगा उसकी सूची बनाइए. सूची એટલે એક યાદી. તો જંગલમાં શું શું હોય? જંગલમાં પ્રાણીઓ હોય, પક્ષીઓ હોય, ઝાડ હોય, પાન હોય, ઝાડી ઝાખરા હોય, આવું બધું હોય. તો જંગલની અંદર એ બધું જ પલળતું હોય. વરસાદ હોય એટલે એવી જગ્યા કોઈ બાકી ન રહે કે જે વસ્તુ ના પલળતી હોય. જ્યાં સુધી વરસાદના છાંટા કે એનું પાણી પહોંચે તે તમામ વસ્તુ પલળતી હોય છે. તો એનો પ્રશ્ન છે એ તમે લખી નાખજો જાતે. હું સીધો જ તમને જવાબ લખાવું છું કે જંગલ મેં ઓર ક્યા ક્યા ભીગ રહા હોગા. તો જવાબમાં લખો जंगल में प्राणी, प्राणी પણ કહેવાય, જાનવર પણ કહેવાય. બરોબર છે? તો આપણે હવે પ્રાણી લખીશું. પંખી, पेड़, पौधे, હવે પેટે ચાલતા જે હોય પ્રાણીઓ એને આપણે સરીસૃપ કહેવાય. જેમ કે મોટી બધી મોનિટર લિઝર્ડ હોય જેને આપણે ગુજરાતીમાં ઘો કહીએ. ચંદન ઘો બહુ મોટી સાઈઝની હોય એને સરીસૃપ કહેવાય. સાપને, અજગરને, ગરોળી હોય અને મગર હોય, આવા ઘણા પ્રકારના સરીસૃપ હોય. તો એ પણ પલળતા હોય. તો આપણે એ બધા પ્રાણી અને પંખીની અંદર જ પ્રાણીની અંદર જેને આપણે લઈ લીધા છે એટલા માટે પેડ, પૌધે, લતાએ, લતાએ એટલે વેલાઓ, आदि सब भीग रहा होगा. जंगलમાં શું હોય? जंगलમાં प्राणी હોય, पंखी હોય, पेड़ હોય, पौधे, लताएं आदि जो भी हो सकता है जंगल में वो बारिश की वजह से भीग रहा होगा. अब हम स्वाध्याय, अभी तक हमने क्या किया था? अभ्यास के प्रश्न किए थे. अब हम स्वाध्याय के प्रश्न करेंगे. तो अब मैं ये जो प्रश्न का जवाब मैंने आपको लिखाया है वो आपने लिख लिया होगा. तो अब उसके नीचे हम लिखेंगे स्वाध्याय के प्रश्न. उनमें सबसे पहला प्रश्न है बुढ़िया कहाँ रहती थी. तो तमने बधाने खबर ज छे कि बुढ़िया जंगल में रहती थी. तो पहला जवाब लिखे बुढ़िया
जंगल में रहती थी। बुढ़िया जंगल में रहती थी। अब दूसरा सवाल है, बरसात में बुढ़िया के घर में क्या टपकने लगा। अब आपको पता है कि बरसात में तो सिर्फ एक ही चीज टपकती है, वो होता है पानी, और पानी टपकने लगा। तो दूसरा जवाब लिखिए, बरसात में बुढ़िया के घर में पानी टपकने लगा। बुढ़िया के घर में पानी टपकने लगा। अब तीसरा सवाल है, ओलों की मार से परेशान होकर बाघ कहाँ गया। ओलो, ओले मतलब करा। હમણાં આપણે કમોસમી વરસાદ થાય છે અને તમે સમાચારમાં કે ન્યૂઝપેપરમાં જોયું હશે કે એમાં પણ હોય છે કે કરાનો વરસાદ થયો છે। તો કરા એટલે નાના મોટા બરફના ટુકડા જે વાતાવરણમાં આવવા છતાં પીગળેલા ન હોય અથવા પીગળીને નાની સાઈઝના થઈ ગયેલા હોય, સાવ પીગળી શક્યા ન હોય, તો એ બરફના ટુકડાને જે વરસાદની સાથે પડતા હોય એને કરા કહેવાય। તો હિન્દીમાં એને ઓલે કહેવાય। તો ओलों की मार की वजह से परेशान होकर बाघ झोपड़ी की आड़ में आ गया। झोपड़ी की आड़ એટલે ઝૂંપડીની આડશમાં, કોઈ પણ વસ્તુની આડશમાં આવી જાવ, તમે દિવાલની ઓથે ઊભા રહ્યો કે ઝાડના નીચે ઊભા રહ્યો તો એને આડશ કહેવાય। તો લખીએ આપણે ત્રીજો જવાબ, ओलों की मार से परेशान बाघ झोंपड़ी की आड़ में आ गया। ओलों की मार से परेशान बाघ झोपड़ी की आड़ में आ गया। તમે ઝોપડી લખો, કુટિયા લખો, કોઈ પણ ચાલે। કુટિયા પણ ઝૂંપડી જ થાય ને ઝોપડી પણ ઝૂંપડી જ થાય। જે उस झूंपड़ी में वो बुढ़िया रहती थी, उसके आड़ में वो आके आ गया। अब चौथा जवाब है, सवाल है, पानी टपकने की आवाज कैसी थी। अब आप सभी ने तो ये पाठ का अध्ययन किया ही होगा। तो चौथा जवाब लिखिए, पानी के टपकने की आवाज टप टप ऐसी थी। હવે કોઈ પણ વસ્તુને તમારે ખાસ ભારપૂર્વક દર્શાવવી હોય તો એને આવી રીતે ઇન્વર્ટેડ કોમા એટલે કે અવતરણ ચિહ્નની અંદર બતાવે, જેથી ખબર પડે કે આવી હતી, બરોબર છે। તો એ તમારે ખાસ આ ઇન્વર્ટેડ કોમા કરવાના છે, અવતરણ ચિહ્નો કરવાના છે। अब पांचवा जवाब लिखिए कि सवाल है कि बुढ़िया को सबसे ज्यादा डर किससे लगता था। तो उसका जवाब है, पांचवा जवाब, बुढ़िया को सबसे ज्यादा डर, अब वो भी इन्वर्टेड में ही आएगा, टपका से लगता है। बुढ़िया जो जंगल में रहती थी
उससे उसको किससे ज्यादा डर लगता था? तो टपका से। वो टपका क्या था? तो ऊपर से उसकी छत से गिरने वाला पानी था, जो उसकी झोपड़ी के अंदर की सारी चीजों को भिगो देता था। इसीलिए बुढ़िया है वो टपका से ज्यादा डरती थी। छठा जवाब लिखे, बुढ़िया की बात सुनकर बाघ ने क्या किया? बाघ जो है वो झोपड़ी के पास ही खड़ा था और अंदर से बुढ़िया की आवाज आई कि मुझे बाघ से नहीं डर लगता, इतना डर इस टपका से लगता है। तो बाघ ने क्या सोचा कि अरे ये टपका कोई बहुत ही बड़ा और विकराल प्राणी होगा, भयानक होगा, जो जो ये बुढ़िया है वो मुझसे कम और उस टपका से ज्यादा डरती है। तो वो ये सोचकर कि ये टपका तो बहुत बहुत ही भयानक ही होगा, तो चलो मैं भी भाग जाता हूँ। तो वो उसने क्या किया? बाघ ने पैर सिर पे रख के धूम दबा के भागा। पैर सिर पे रखना यहाँ काट के यहाँ पर लगा देना, ऐसे नहीं। ये एक मुहावरा है, कहावत है कि धूम दबा के पीछे बिना देखे दौड़े ही आगे ही भाग जाना है। उसको सिर पर पैर रखना कहते हैं। तेज गति से भाग जाना कहते हैं। तो छठा जवाब लिखे कि बुढ़िया की बात सुनकर बाघ बुढ़िया की बात सुनकर बाघ, फिर से इन्वर्टेड कोमा, पैर सिर पर रखकर भाग गया। तेज गति से भागना यानी कि पैर है जो सिर पे रख के भागना। अब यहाँ हमारे स्वाध्याय के जो 6 प्रश्न थे वो हमने यहाँ पर कर लिए हैं। अब 31वें पेज में 31st वाला पेज है, उसमें देखिए कि प्रश्न 2 है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के बारे में 5-7 वाक्य लिखे। तो मैं यहाँ तीनों के बारे में, उसमें 3 विषय दिए गए हैं, एक तो है मोर, दूसरा बाघ और तीसरा तोता। इन तीनों के बारे में हम 3-4 वाक्य ही लिखेंगे, ठीक है। तो आप अगर आपने ये लिखा नहीं है तो स्क्रीनशॉट लेके आप इसमें से देखकर अपने बाकी नोट जो आपने बनाई है उसके अंदर आप ये नोंद अच्छे से कर ले, ठीक है। फिर भी मैं 2 मिनट का समय आपको देती हूँ, आप अच्छे से लिख ले। तो आपने ये अच्छे से लिख लिया होगा। अगर किसी को रह गया है तो ये स्क्रीनशॉट लेके आप वहाँ वीडियो को स्टॉप करके भी लिख सकते हैं। तो अब हम आगे लिखेंगे। मैं यहाँ इरेज कर रही हूँ, आप किसी को इरेज करना नहीं है। अब जो 3 विषय दिए गए हैं उनमें से पहला है मोर। तो हम पहले मोर के बारे में लिखेंगे। यहाँ इतना ये मेरा बोर्ड है वो जो सीधा है, इसीलिए मैं इसे विभाग कर रही हूँ। आपको अपने पेज में सीधी लाइन में ही लिखना है, आपको इसे कोई भी लाइन दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ हम मोर के बारे में लिखेंगे।
तो हम 4 से 5 वाक्य में ही क्या लिख सकते हैं मोर के बारे में कि वो बहुत ही सुंदर और रंग बिरंगी पंखी होता है, उसके पंख बहुत ही सुंदर और बड़े होते हैं, उसके सर पर अच्छी सी कलगी होती है। मोर सांप और छोटे बड़े कीड़े मकोड़े खा के रहता है और वो बहुत ही सुंदर होने की वजह से उसे हमारे राष्ट्रीय प्राणी की पदवी प्राप्त है। हम इतना ही लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे मोर हमारा राष्ट्रीय पंखी है। मोर बहुत ही सुंदर और रंग बिरंगी पंखी होता है। मोर वर्षा ऋतु में खुश होकर पंख फैलाकर नाचता है। मोर को बारिश बहुत अच्छी लगती है। हमने क्या लिखा? मोर हमारा राष्ट्रीय पंखी है। मोर बहुत ही सुंदर और रंग बिरंगी पंखी होता है। मोर वर्षा ऋतु में खुश होकर पंख फैलाकर नाचता है। मोर को बारिश बहुत ही अच्छी लगती है। जब बारिश काले बादल घिर के आ जाते हैं, बारिश की मिट्टी की अच्छी मीठी मीठी सुगंध फैलाने लगती है और बारिश आनी शुरू होती है तो मोर बहुत ही खुश हो जाता है। उसका ये बारिश का मौसम है और मोर को बहुत ही अच्छा लगता है तो वो अपने क्या करता है, अपने बड़े हुए रंग बिरंगी पंख को ऐसे फैलाकर वो अपने खुश होकर नाचने लगता है। अब दूसरा टॉपिक है बाघ। अब मोर की तरह बाघ भी क्या है? हमारा राष्ट्रीय प्राणी है। वो क्यों? क्योंकि वो बहुत ही अच्छा, सुंदर और दिखने में सुंदर और बहुत ही ताकतवर प्राणी है तो उसे राष्ट्रीय प्राणी का सम्मान प्राप्त है। तो उसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं कि बाघ हमारा राष्ट्रीय प्राणी है। वो जंगल में रहता है। बाघ के शरीर पर काले और केसरी रंग के पट्टे होते हैं। वो बहुत ही ताकतवर प्राणी होता है। वो शिकार करके जीता है। वो जंगलों में रहता है। हम ऐसा आदि लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे बाघ हमारा राष्ट्रीय प्राणी है। बाघ जंगल में रहता है। वह बहुत ताकतवर એટલે शक्तिशाली प्राणी होता
है। बाघ के शरीर पर काले और केसरी रंग के पट्टे होते हैं। बाघ शिकारी प्राणी है। बाघ हमारा राष्ट्रीय प्राणी है। बाघ जंगल में रहता है। वह बहुत ताकतवर प्राणी होता है। बाघ के शरीर पर काले और केसरी रंग के पट्टे होते हैं। बाघ शिकारी प्राणी होता है। अब तीसरा टॉपिक है तोता। तोता यानी पोपट। આપણે ગુજરાતીને જેને પોપટ કહીએ એને હિન્દીમાં તોતા કહેવાય। તો આપણે જનરલી ગુજરાતીમાં લખતા હોય તો એને લાલ પોપટનો રંગ લીલો હોય છે, એની ચાંચ લાલ હોય છે, એને મરચું બહુ ભાવે છે, માણસોની જેમ ભાષા બોલી શકે છે, બહુ ઝાઝા બધા શબ્દો પણ એને યાદ રાખી શકે છે। આવું બધું આપણે લખીએ તો આપણે હિન્દીમાં પણ એમ જ લખીએ કે તોતા सुंदर पंखी है। तोते का रंग हरा होता है। तोते की चोंच लाल रंग की और मुड़ी हुई होती है। तोते को मिर्च बहुत पसंद होती है। तोता मनुष्य की तरह बोल सकता है। फिर इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। वो पेड़ पर रहता है, वो बड़े झुंड में एक साथ भी रहते हैं, वो मिर्च के साथ अमरूद भी खाना उसे पसंद होता है, वो घोंसले बनाकर रहता है, घोंसलों में वो खड़कों की ऐसे वो बखोल होती है उसमें भी वो रहता है, आदि कुछ आप लिख सकते हैं। तो अब हमने प्रश्न 2 भी कर लिया। अब प्रश्न तीसरा है जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ कि नीचे दिए गए चित्र का वर्णन 10 वाक्यों में लिखना है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि यहाँ पर एक मेले का चित्र है, एक सपेरा है जो सांप के खेल दिखा रहा है, बच्चे देख रहे हैं, सभी देख रहे हैं। फिर यहाँ पर वो कुछ बेचने वाली है, यहाँ पर स्टॉल लगा हुआ है, जादूगर का खेल है, यहाँ पर अपने घूमने फिरने वाले है, चकडोल है, वो सब कुछ आपको लिखना है। इस चित्र में जो भी आता है वो सब आपको 10 वाक्य में
यहाँ पर बकरियाँ या बैल कुछ दिख रहा है, वो भी आपको यहाँ सब कुछ लिखना है। ये आपका होमवर्क है। तो ये चित्र का वर्णन अपने हिसाब से अच्छी तरह से आपको नीचे दी गई लाइनों में ही लिखनी है। तो आज हम अपना 26वां पाठ टपका का घर यहाँ पूर्ण करते हैं। अगले पीरियड में हम क्या करेंगे, तो हम आगे का जो कुछ भी है वो हम आगे करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। घर में रहे, सुरक्षित रहे। आभार।